صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: بشيرنا كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شيئا. آج جنہوں نے بدھ کو عید منایا، اول بدھ کو مناتا، ان کے لیے پچھلے کل 15 شوال کا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ تھی، اور جنہوں نے جمعرات کو عید منایا، پہلا شوال مانا، ان کے لیے آج 15 شوال روز شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے ہم اس شہادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین و حاضرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ یاسین بھائی، ہماری آواز برابر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے۔ لہٰذا اس موقع پر امام جعفر صادق علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مناسب سمجھا کہ آپ کے اقوال امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہترین اور آمین آپ کے سماعت کے حوالے کروں، جو شاید ہم سب کے لیے بہترین مشعل راہ ہو، جس سے ہم سب مستفیض ہوں۔ یقیناً انشاءاللہ ان باتوں کو اگر آپ نوٹ کریں گے، ان باتوں کو ریکارڈ کریں گے، ان باتوں کو محفوظ کریں گے، تو شاید کل جب آپ تبلیغ کے لیے جائیں یا ہماری خواہران تبلیغ کے لیے جائیں گی، کہیں پہ بھی جب وہ خطاب کریں گی یا ہمارے دوست احباب کہیں پہ بھی خطاب کریں گے، تو عوام الناس کو گائیڈ کرنے کے لیے شاید یہ باتیں بہت مفید ثابت ہو۔ لہذا اس سلسلے میں سب سے پہلے جس عنوان کے تحت ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ عدم استجابت دعا، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی۔ آج کل جس معاشرے میں یا جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں: مولانا صاحب، ہم لوگ کتنا دعا مانگتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں، کتنی مناجاتیں کرتے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری کوئی بات اللہ سن نہیں رہا ہے۔ تو ہماری بات اللہ کیوں نہیں سن رہا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے یاسین بھائی، بیچ بیچ میں آپ بتاتے جائیے کہ ہم کو ہماری آواز برابر آ رہی کہ نہیں، کیونکہ اس طرح ہم کو آغاز بسم اللہ کریں۔ خواہران ٹیگ کر رہی ہیں کہ آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، بے فکر رہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی، تو ہمارا جو عنوان ہے وہ عدم استجابت دعا کے اسباب، یعنی دعا قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بندہ، ایک صحابی امام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے: آقا و مولا، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس کے کچھ وجوہات ہیں، کچھ اس میں مثبت پوائنٹس ہے، کچھ منفی پوائنٹس ہے۔ تو میں پہلے مثبت پوائنٹس بتا دیتا ہوں، جو آپ بولیں گے تو جہاں بھی بولیں گے وہاں لوگوں کو ایک طرح سے امید اور ایک دھارا تسلی ہوگی۔ تو پہلے میں مثبت پوائنٹ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد جو امام نے عدم استجابت دعا کا منفی پوائنٹ بتایا وہ بھی بتا دوں گا۔ مثبت پوائنٹ کیا ہے؟ اب امام سے جب سوال کیا گیا، صحابی نے یا اصحاب نے پوچھا: مولا، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو امام نے فرمایا اس کے پیچھے 2 وجہ ہیں۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے، جبکہ یعنی صحابی کہنے والا اس نے قرآن کے آیت بھی کوٹ کی یہاں پر کہ مولا خدا نے وعدہ کیا: ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو ہم قبول کریں گے، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔
उसके बावजूद हम दुआ करते हैं और हमारी दुआ कबूल नहीं होती। अब इमाम ने यहाँ से उसका जवाब शुरू किया, उसको इस तरह से कहा, देखो तुम्हारी दुआ कबूल ना होने के पीछे दो वजह है। एक, अल्लाह जिसे पसंद करता है, जिसे दोस्त रखता है, जिसके बारे में अल्लाह चाहता है कि मेरे हुजूर में रहे, मेरे साथ। आपका नेटवर्क चला गया। नहीं, हमारे गया बैटरी लो, बैटरी लो। जितना वो आपसे उम्मीद रखता है उससे भी ज्यादा देंगे जब आपको उसकी आवाजें अच्छी लगेगी, उसकी सीधा कहानी अच्छी लगेगी, या उसकी नात कहानी या उसकी हमदो सना आपको जब महसूस करेगा तो जाहिर सी बात है आप उसको इनाम ज्यादा देंगे। तो कहते हैं, बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर किसी की आवाज हमें अच्छी लगेगी तो हम उसे रोक देंगे और उससे और सुनना पसंद करेंगे और ज्यादा देर रोकेंगे। यही हाल खुदा का भी है। खुदा जिसकी आवाज को पसंद करता है, जिसकी आवाज खुदा को अच्छी लगता है, फरिश्तों से कहता है इसको अभी फौरन मत दे दोगे ये भाग जाएगा, लेकिन दुआ कबूल हो जाएगी, ये चला जाएगा। लिहाजा उसकी दुआ को कबूल अभी न करो, उसको रोक के रखो ताकि वो और ज्यादा देर तक मेरे बारगाह में रहे। मुझे इसकी आवाज अच्छी लगी है, मुझे ये बंदा अच्छा लग रहा है, मुझे ये मेरा बंदा यानी महबूब है। एक वजह ये होती है, लेकिन कितना मुस्बत एक दूसरे इमाम ने फरमाया, देखो इस तरह से अल्लाह जल्दी कबूल नहीं करती। दूसरी बात, वो दुआएं जो हमारी कबूल नहीं होती, दूसरी वजह यह है कि इसका एक बेहतरीन सिला, इसका बेहतरीन मुआवजा अल्लाह तुम्हें आखिरत में देगा। मसला फिर इमाम ने इसको भी मिसाल से समझाया कि एक बंदा है, वो दुआ मांगता है अल्लाह से, अल्लाह मुझे दौलत दे, मुझे पैसा दे, धन दौलत मिले तो मैं मसलन मस्जिद बनाऊंगा, इमाम बारगाह बनाऊंगा, मदरसा बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा, तरह तरह की नेकियों को सोचता रहता है, अल्लाह से पैसा मांगता रहता है, लेकिन अल्लाह उसको देता नहीं, उसको पैसा देता नहीं है, उसकी मुराद पूरी नहीं होती, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। तो इमाम ने फरमाया इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि अल्लाह जानता है अपने बंदों की दिलों के हाल से वाकिफ है, और शैतान हर वक्त उसके बंदों के ताक में शैतान तेरे मखलूकात में से, तेरे बंदों में से एक बंदा है जो मुझे ऐसी जगह से देख रहा है जहां मैं उसे देख नहीं पाता। यानी शैतान हमें ताकता रहता है, हमें बहकाने के लिए और गलाने के लिए। तो इमाम ने फरमाया अल्लाह अपने बंदों के बारे में इस तरह से जानता है कि इसको पैसा मिलने के बाद ये क्या करेगा, या शैतान इसको भटका देगा। अभी ये दुआ मांग रहा है पैसे मिलेगा मैं मस्जिद बनाऊंगा, अभी ये दुआ मांग रहा है पैसा मिलेगा मैं इमाम बारगाह बनाऊंगा, अभी मुझे पैसा मिलेगा तो मैं स्कूल कॉलेज बनाऊंगा, नेकी में खर्च करूंगा। लेकिन पैसा मिलने के बाद शैतान इसको बहका देगा और ये उन चीजों में खर्च नहीं करेगा जिसके लिए दुआ मांग रहे हैं। या मसलन वहाँ 1 लाख मिला तो 10,000 जो है वो स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में देगा और बाकी 90,000 जो है दूसरे रास्ते में खर्च कर देगा। तो कहता है अल्लाह ऐसे बंदे की दुआ को कबूल नहीं करता ताकि उसके पैसे गलत जगह पे जाके खर्च ना हो जाए, बल्कि फौरन फरिश्तों से कहेगा। इसके इमाम ने फरमाया रोज़े महशर जहाँ लोग एक एक नेकी को तरसेंगे, रोज़े महशर अल्लाह उसको नेकी का पहाड़, याद रखिए नेकी की पहाड़ जो है वो तोहफे में देगा, बेहतरीन नेकियां तोहफे में देगा। तो वो हैरान होकर पूछेगा परवरदिगार मेरी ये नेकियां कहाँ से आई? इतनी नेकियां तो मैंने नहीं की थी। मसलन कहीं इमाम बारगाह बनाने की नेकी, कहीं मस्जिद बनाने की नेकी, कहीं हॉस्पिटल बनाने की नेकी, कहीं कुछ और नेकी उसको नजर आएंगे। वो पूछेगा परवरदिगार ये तो मैंने किया नहीं। तो उस वक्त खुदा कहेगा तुमने मुझसे दुआ की, मैंने दुनिया में तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की थी, लेकिन तुम्हारी दुआ हमने दुनिया में तुमको नहीं किया था, लेकिन उसके लिए दुआ कबूल करके मैंने आखिरत के खाते में लिख दिया था। मुझे पता था कि अगर दुनिया में तुम्हें ये पैसा दे दिए जाते, शैतान तुम्हें वरगला देता, तुम्हें भटका देता और ये पैसे तुम गलत जगह पे खर्च कर देते और इस अजर से महरूम हो जाते। मैंने अपने बंदों से कहा मैं अपने बंदों की दिल के हालात को जानता हूँ, लिहाजा इसके नेकी के खाते में मस्जिद बनाना लिख
दो, इमाम बारगाह बनाना लिख दो, हॉस्पिटल बनाना लिख दो, स्कूल बनाना लिख दो, सब लिख दो, जो जो ये मुझसे मांग रहा है सब लिख दो, लेकिन इसको हम दुनिया में नहीं देंगे, इसको इसका अजर आखिरत में देंगे। इसीलिए तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती, ताकि तुमको आखिरत में उसका बेहतरीन अजर मिले। अभी आप सोच सकते हैं, यानी दुनिया में अगर मिल जाता तो शायद वो पैसे हम वहाँ खर्च नहीं करते, शैतान हर वक्त हमें भटका देता, बहका देता। लिहाजा जब कबूल नहीं किया, उसका आखिरत में जहाँ लोग एक एक नेकी को तरसेंगे, अगर उस वक्त हमें बेहतरीन नेकी दी जाए, हमें कितनी खुशी होगी। तो कहते हैं बंदा उस वक्त शुक्र खुदा अदा करेगा कि अल्लाह तेरा हज़ार शुक्र है कि तूने हमें दुनिया में नहीं दिया, दुनिया में हमारी दुआ को कबूल नहीं किया, आखिरत के लिए छोड़ दिया, और उस दिन अल्लाह उसको देगा। तो ये दो वजह है कि जो मुस्बत वजह, दुआ कबूल न होने के दो मुस्बत वजह, एक अल्लाह जिसको पसंद करता है, जिसकी आवाज को सुनना चाहता है, उसकी दुआ जल्दी कबूल नहीं करता, और दूसरी वजह अल्लाह जिसको आखिरत में नेकी देना चाहता है, उसके आखिरत को बेहतर देखना चाहता है, दुनिया में देखे उसके दुनिया को, यानी दुनिया के जरिए आखिरत को खराब नहीं करना चाहता। ये दो मुस्बत पहलू थे दुआ कबूल न होने के। आप लोग ने दोनों को महसूस किया? दोनों बात आप लोगों के लिए क्लियर है कि मुस्बत पहलू दुआ कबूल न होने के? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अब ये नेगेटिव पॉइंट, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से आप उम्मीद है कि बिरादरान और सहारान इस तरह से आप अवामुन नास में जाकर लोगों को उम्मीद दिलाएंगे, लोगों को धारस देंगे, लोगों को तसल्ली देंगे, अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेंगे तो तुम परेशान मत होना, तुम्हारी दुआ कबूल न होने के पीछे तुम्हारी भलाई, तुम्हारी मसलहत है। लिहाजा जब इस तरह उसको तसल्ली मिलती है, अब उसको थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, कबूल न होने की जो मनफी पॉइंट है, अब उसको इस तरह से समझेंगे, जिसको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने भी, इस चीज को भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया अपने जद मौला अली अलैहिस्सलाम से नकल करते हुए। अब देखिए इमाम जाफर अलैहिस्सलाम ने दुआ कबूल न होने की जो वजह बताया, अब उसको महसूस कीजिए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, फ़क़ाल अल इमाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अगर सलवात पढ़ ले थोड़ा बुलंद आवाज से पढ़िए। अब यहाँ पर मनफी पॉइंट नोट कीजिए, कितनी बेहतरीन बातें इमाम ने बता दी अपने जद अमीर अल मोमिनीन के हवाले से, क्योंकि ये असल बात अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की है, जिसको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने 4000 शागिर्दों को सुनाया था, अपने 4000 तुल्लाब को जब दर्स दिया था तब बताया था कि तुम्हारी दुआ कबूल न होने की वजह क्या है। अब सुनिए, फ़क़ाल इमाम अस्सादिक अलैहिस्सलाम इन्नमा सुइल अल इमाम लिमाज़ा लम युस्तजब दुआ व अजाब क़ाइला। इमाम से जब पूछा गया, तालिब इल्मों ने पूछा, शागिर्दों ने पूछा, मौला हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती? तो उस वक्त इमाम ने फरमाया था, अरफ़्तुमुल्लाह फलम तुअद्दु हक़्क़ा, तुम्हारी दुआ कबूल न होने की वजह यह है कि तुमने अल्लाह को पहचाना, अल्लाह को माना, यानी अल्लाह पर ईमान तो लाए लेकिन उसका हक अदा नहीं किया, यानी हुकूक इलाही को, अल्लाह का जो हक है वो तुमने अदा नहीं किया। अल्लाह को हम यहाँ पर एक बात हमेशा कहते हैं अपने मजालिस में कि उम्मत मुस्लिमा ने खुदा को माना, खुदा की नहीं माना। अब समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? खुदा को माना, खुदा की नहीं मानी, रसूल को माना, रसूल की नहीं मानी। और फिर हम जब शियों को बोलते हैं, अहले बैत के चाहने वालों को बोलते हैं, तो कहते हैं अहले बैत को माना, अहले बैत की नहीं मानी, जिसकी वजह से कभी कभी हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। तो अहले बैत को मानना है और अहले बैत की मानना है, नबी को मानना है, नबी की मानना है, अल्लाह को मानना है, अल्लाह की माननी, तब जाकर हमारी दुआ कबूल होती है। तो इमाम ने फरमाया तुम अल्लाह पर ईमान तो लाए लेकिन उसकी बातें नहीं मानी, अल्लाह के अहकाम पर, अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। दूसरी, क़रअतुमुल कुरान फलम तअमलू बिह, तुमने कुरान पढ़ी मगर कुरान के ऊपर अमल नहीं किया। बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। याद रखिए यही कुरान जो हमारे भलाई के लिए पढ़ी जाती है, मतलब कोई मरूम मर जाता है और उसकी सलाह सवाब के लिए कुरान पढ़ते हैं, लोग कुरान की तिलावत करते हैं, आप लोग भी जाते होंगे पढ़ते होंगे। सुनिए, कहते कभी कभी हम मरूम के लिए तिलावत कुरान करते हैं उसके फायदे के लिए, लेकिन उसको उसका बरक उसको उससे सजा दी जाती है, उसे और तकलीफ दी जाती है हमारी तिलावत की। इसको इस पे अहमद तोलर का वाकया मैं आपको यहाँ खुला यासिन में हमारे पास वाकया, मैं यहाँ छोटा वाकया सुना सकता हूँ? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी जी,
तो अहमद तोलन ये मिस्र का बादशाह था, मुसलमान बादशाह था, और उस वक्त का मशहूर कारी था कारी जौहर अबू ताहिर उसका नाम था, जिसको आयतुल्लाह दस्तगीर शिराज़ी ने किसी अजीब में लिखा। कहते हुए उसके मरने के बाद अहमद तोलन बादशाह जब मर गया तो उसके बच्चों ने, बीवी बच्चों ने उसकी कब्र पे जौहर को, अबू ताहिर को, जो है उस वक्त का बेहतरीन कारी था, अपॉइंट किया कि रोजाना शाम को जाकर तुम तिलावत करोगे। ये बेचारा कारी गया, कब्र में गया, तिलावत करके वापस आया, रात को ख्वाब में अहमद तोलन बादशाह को देखता है और जो इससे कहता है कि कल मेरे कब्र पे कुरान पढ़ने मत आना। गौर से सुनिए, कल मेरे कब्र पे कुरान पढ़ने मत आना। ये बेचारा परेशान होगा, सोच रहा होगा नॉर्मल ख्वाब है, इतने ख्वाब देखते रहते हैं। फिर से ये दूसरे दिन तिलावत करने पहुंच गए, दूसरे दिन तिलावत करके फिर वापस आया, फिर इसने ख्वाब में देखा कि अहमद तोलन बादशाह इससे बहुत नाराज है। ये पहचानता था, दरबार में आता जाता था। उसने कहा कि मैंने तुमको कल मना किया था मेरे कब्र पे तिलावत करने मत आना, फिर तुम क्यों आए? खबरदार अब कल मत आना, अगर तुम कल मेरे कब्र पे तिलावत के लिए आए तो बस मैं तुमको भी अपने पास बुला लूंगा। क्या कहा? अगर तुम कल मेरे कब्र पे तिलावत करने आए तो तुमको भी मैं अपने पास बुला लूंगा। अब ये बेचारा डर के घबरा गया, दूसरे दिन ये तिलावत करने नहीं गए। उसके बाद तिलावत करने जब बादशाह के खबर में महल में बात पहुंची कि आज जो है वो कारी तिलावत करने नहीं है आया, खबर पे नहीं पहुंचा, तो उसके बीवी बच्चों ने बुलाया, क्या बात है आप तिलावत करने क्यों नहीं गए? उसने कहा मैं अब नहीं जाऊंगा। उसने ये नहीं बताया कि मुझे बादशाह ने मना किया है। उसने कहा नहीं मैं अब तिलावत करने नहीं। तो घर वालों ने सोचा होगा शायद इनकी लालच बढ़ गई होगी कि इनको और ज्यादा पैसा चाहिए होगा, तो उन्होंने जो मुआवजा तय किया तो उसको डबल कर दिया, दुगना कर दिया कि आप 2000 अशरफी के बजाय 4000 अशरफी ले लीजिए, लेकिन आपको कब्र पे जाके तिलावत करनी है। ये बेचारे पैसे के लालच में आके तीसरे दिन तिलावत के लिए पहुंच गए। जब तीसरे दिन तिलावत करके घर आए तब रात को उन्होंने बादशाह को ख्वाब में देखा। यहाँ पर इबरत है, इसको गौर से बादशाह को ख्वाब में देखा, वही बादशाह आके कह रहा है अहमद तोलन हमने सॉरी अबू ताहिर मैंने तुमको मना किया था मेरे कब्र पे आके तिलावत मत करना, तुम फिर क्यों आए? तो अब ये जसरत करके बादशाह से पूछता है बादशाह हम तो आपकी भलाई के लिए कुरान की तिलावत कर रहे हैं और आप हमें क्या है कि तिलावत से रोक रहे हैं, आपकी भलाई के लिए, आप ताकि आपको कब्र में सुकून मिले, आराम मिले, आपको इसका अजर मिले, इसलिए हम तिलावत कर रहे हैं और आप हमको मना कर रहे हैं। अब अहमद तोलन ने कहा वो सुनो, अहमद तोलन ने कहा क्योंकि तुम कुरान की आयतों की तिलावत करते हो उसमें बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जिन पर हमने दुनिया में अमल नहीं किया। मसलन मिसाल के तौर पर तुम नमाज वाली आयत की तिलावत करते हो, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, तुम रोजा वाली आयत की तिलावत करते हो, मैंने रोजा नहीं रखा, तुम हज वाली आयत की तिलावत करते हो, मैंने हज नहीं किया, तुम ज़कात वाली आयत की तिलावत करते हो और मैंने ज़कात नहीं किया, तुम खुम्स वाली आयत की तिलावत करते हो और मैंने खुम्स अदा नहीं किया। तो जिन जिन आयतों पर हमने अमल नहीं किया गोया तुम फरिश्तों को याद दिलाते हो, तुम फिर कि इसको मारो, इसने नमाज नहीं पढ़ा, इसको मारो, इसने रोजा नहीं रखा, इसको मारो, इसको धुलो, इसने हज नहीं किया, इसको मारो कि इसने ज़कात नहीं दिया। तो गोया तुम उसको याद दिलाते हो और वो और मुझे पिटाई करता है, मुझे और मारता रहता है कि तुमने इस आयत में अमल क्यों नहीं किया, इस आयत पर अमल क्यों नहीं किया, इस आयत को पढ़ा नहीं था, इस आयत को सुनी नहीं, इन आयतों को। तो गोया मेरे लिए सवाब की बजाय तुम अजाब भेजते हो। अब समझ गए? तो यही इमाम जाफर साहब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुम्हारी दुआ कबूल इसलिए नहीं होती कि तुम कुरान पढ़ते हो मगर उस पर अमल नहीं करते। अब यहाँ पर मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने बरादरान और खारन क्यों बताता हूँ कि कुरान के 4 हुकूक, आप कहीं पे भी रमजान में भी तबलीग में जाते हैं लोगों को बताते होंगे कुरान के बारे में, तो जहाँ भी जाइए बोलिए कुरान के 4 हुकूक है, अगर इन हुकूक का हमने अदा किया तो हम निजात पाएंगे, कुरान हमारी शफाअत करेगा माशा में कुरान। और अगर इन चारों हुकूक का अदा नहीं किया हम पकड़े जाएंगे और अहमद तोलन वाला हाल हमारा भी होगा। याद रखिए 4 हुकूक क्या है? सबसे पहले कुरान को सही तरीके से पढ़ो, पहला कुरान अरबी ज़बान में है तो अरबी लबुल हसन क़िराअत सही होनी चाहिए, कुरान को सही तरीके से पढ़ो। दूसरे कुरान को समझो, सिर्फ पढ़ो नहीं, पढ़ने के बाद ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत के लिए शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। माह रमज़ान में कुरान को नाज़िल किया गया लोगों की हिदायत के लिए, इसके अंदर हिदायत के सारे रास्ते वाज़ेह तौर पर बता दिए गए। तो ये कुरान हमारे हिदायत के लिए, अगर हमने इससे
हिदायत हासिल नहीं की तो गोया हमने उसका हक अदा नहीं किया। याद रखिएगा, तो पहला हक सही से पढ़ो, दूसरा हक उसको समझो, उसको पढ़ के समझो कि अल्लाह ने हमें इसमें हिदायत किया है। तीसरा उस पर अमल करो। देखो पढ़ लिया, समझ लिया, अमल भी नहीं किया तो भी बेकार है। पढ़ना है, समझना है, उस पर अमल करना, ये तीसरा हक है जो मेन हक है। उसको कुरान का सबसे बड़ा हक है तो उसको पढ़ो, समझो, फिर उस पर अमल करो। जब खुद ने पढ़ लिया, समझ लिया, उस पर अमल किया, अब ये दूसरों तक पहुंचाओ। चौथा और आखिरी हक क्या है कि कुरान दूसरों तक पहुंचाओ कि अल्लाह ने देखो इसमें ये हिदायत की अपने बंदों को। ये चार हक अगर किसी ने अदा किया तो ही उसके लिए कुरान मुफीद है और वो निजात पाएगा, कुरान से बात करेगा। और अगर इसमें चारों हक में से किसी एक हक को भी अदा न किया या कमी रह गई तो फिर उसका वो खुद जिम्मेदार होगा। तो इमाम फरमाते हैं तुम कुरान तो पढ़ते पर उस पर अमल नहीं करते, इसलिए तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। तीसरी बात, अद्दईतुम हुब्ब रसूल फलम तअमलु बिसुन्नती, तुम दावा करते हो कि तुम रसूल से मोहब्बत करते हो लेकिन रसूल की सुन्नत पर अमल नहीं करते, रसूल की सीरत पर अमल नहीं करते, इसीलिए तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। यानी रसूल को माना, रसूल की नहीं मानी, इसलिए तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। कभी इंशाल्लाह और मौका मिलेगा तो मैं इन सब बातों की तफसील करूंगा। अब वक्त कम रहेगा तो मैं सिर्फ आपको तर्जुमा करके यहाँ पर हेडलाइन बता देता हूँ। कुल्तुम अन्नकुम तश्तकून इलल जन्नह फलम तअमलू लहा, तुम कहते हो हम जन्नत के मुश्ताक हैं, हम जन्नत जाना चाहते हैं मगर वो काम नहीं करते जो तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाए। मसलन जन्नत सीधा इस रास्ते पर है और तुम जा रहे हो इस रास्ते या तुम जा रहे हो इस तरफ, दुआ कर रहे हो कि मुझे जन्नत जाना है और चल रहे हो गलत डायरेक्शन पे, इसलिए तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। अब समझ गए ये इशारा कि जिस चीज के लिए दुआ मांग रहे हो उसी राह पर चलो, उस रास्ते पर चलो जो तुम्हें जन्नत ले जाए। तुम दुआ जन्नत की मांग रहे हो और जा कहीं और रहे और रास्ते पे, इसीलिए तुम्हारी वो दुआ कबूल नहीं होती। तुम अन्नकुम तखाफून अन्नार फलम तहरबू मिन्हा, तुम कहते हो हम जहन्नम से डरते हैं मगर उससे भागते नहीं हो। यानी जहन्नम से डरते भी हो और काम वो करते हो जो जहन्नम की तरफ ले जाए, तो दुआ कैसे कबूल होगी? आप समझ रहे हैं, जहन्नम से अगर पनाह मांग रहे हो, जहन्नम से डर रहे हो, भाग रहे हो तो तुम वहां से दूर हो जाओ, वो रास्ते से हट जाओ जो रास्ता जहन्नम को जाता है। तो ये इमाम फरमा रहे हैं इसलिए तुम्हारी दुआ नहीं कबूल होती कि तुम जहन्नम से पनाह तो मांगते हो लेकिन उन कामों से दूर नहीं रहते हो जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है। कुल तुम इन्नल मौत हक़्क़ुन फलम तस्तईदु लह, तुम कहते हो मौत हक है मगर उसके लिए तैयारी नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है। मौला जी फरमाते हैं एमल दुनिया अन्नका तईशु अबदा वअमल लिआखिरतिक अन्नका तमुतु गदा, जब तुम दुनिया के लिए काम करो तो ये सोच कर काम करो कि तुमको हमेशा यहीं रहना है, जो कि मुमकिन नहीं। वअमल लिआखिरतिक अन्नका तमुतु गदन, और जब आखिरत के लिए काम करो तो ये सोच कर काम करो कि तुम कल नहीं रहोगे, कल मर जाओगे। आज तुम्हारे पास आखिरी फुर्सत है, आखिरी मौका है। अगर किसी को पता चल जाए तो उसको कल दुनिया से जाना है, उसके पास आज आखिरी मौका है, तो क्या करेगा? तमाम हुकूक अदा करने की कोशिश करेगा, अपने आप को बरी जिम्मा होने बरी जिम्मा करने की कोशिश करेगा कि मैं कोई गुनाह के साथ न जाऊं। तो मौला अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अमल दुनिया का अन्नका तईशु अबदा व अमल आखिरतक का अन्नका तमूतु गदा, आखिरत के लिए जब काम करो ये सोचकर काम करो कि कल तुम मर जाओगे, लिहाजा आज तुम्हारे पास आखिरी मौका है। तो किसी ने मौला से ये भी पूछा है, आरिफीन के अक़वाल में से भी है कि कहा गया कि मौत से पहले, यानी उससे पूछा गया कि हम नेकी का सबसे बेहतरीन मौका कब है, हम कब नेकी करें, उसके लिए सबसे बेहतरीन मौका कब है? तो कहा कि मौत से पहले या मौत से पहले नेकी का मौका सबसे बेहतर मौका है। उस वक्त इंसान दिल से नेकी करता है, दिल से सब करता है तो वो कबूल भी होती है। तो नेकी के लिए सबसे बेहतरीन मौका जो है वो मौत से पहले थी। तो उसने पूछा अगर ये कैसे मालूम होगा हम कब मरेंगे, हमें कब कैसे पता चलेगा कि कल हमारी जो है वो जिंदगी का आखिरी दिन है और आज हमको नेकी करना है? तो उस वक्त इमाम ने भी फरमाया और आरफीन ने भी फरमाया यही सोचकर हर दिन जियो, क्योंकि हो सकता है यही तुम्हारे लिए जो वो आखिरी दिन, अगला दिन तुम नहीं रहोगे। जब अगला दिन नहीं रहोगे तो आज
नेकी करोगे, बेहतरीन अमल करोगे, हर हक को अदा करने की कोशिश करोगे, हर बुराई से इज्तनाब करोगे। तो बेहतरीन तरीके से हमें समझाया गया कि मौत से पहले का दिन नेकी करने के लिए बेहतरीन दिन है। लिहाजा हर दिन को ये सोच कर जियो कि आज हमारी जिंदगी की जो वो आखिरी दिन है, आखिरी मौका है। दो तीन बात और आपके सामने करवा, कुल तुम अन्नल मौत हक फलम तस्तइद्दु लह, तुम कहते हो मौत हक है मगर उसकी तैयारी नहीं कर रहे हो। इसीलिए इमाम नकी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया हमारी पूरी जिंदगी जो है वो चार सवालों के जवाब के पीछे है। ये मेरे टॉपिक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इशारे में इसलिए बोलता रहा हूँ ताकि इनकी पूरी एक तकरीर का मजमून आपको दे रहा हूँ। इमाम ने फरमाया हमारी पूरी जिंदगी इन चार सवालों के पीछे है, तुम्हें किसने भेजा, कैसे भेजा, क्यों भेजा और कब तक के लिए भेजा इस दुनिया में। ये चार सवाल याद रखिएगा, तुमको किसने भेजा, कैसे भेजा, कब क्यों भेजा और कब तक के लिए भेजा। तो कहते हैं जब तुम ये तलाश करोगे तुम्हें किसने भेजा तो तुम खुदा को याद करोगे, तो तुमको इस दुनिया में खुदा ने भेजा। कैसे भेजा, हम कब के नहीं आसमान से, माँ बाप के जरिए से हम इस दुनिया में आए हैं, तो हम माँ बाप को याद करेंगे, माँ बाप की एहसानात को याद करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। तो कैसे भेजा वो याद रखा। क्यों भेजा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंस को खल्क नहीं किया मगर इबादत की। तो भेजने का मकसद बंदगी है। अब ये बंदगी बहुत तफसीली है, सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात यही बंदगी नहीं, बल्कि हर वो काम जिससे अल्लाह खुश हो वो उसकी बंदगी है, वो उसकी परस्तिश है, उसकी इबादत है। तो इबादत के लिए भेजा। और जो कब तक के लिए भेजा ये हम में से किसी को नहीं मालूम, हम कब तक के लिए इस दुनिया में भेजे गए या कब तक हमें इस दुनिया में रहना है। हो सकता है अभी है, अगले पल न रहे, आज है कल न रहे। जितने लोग ये सोचते थे कि कल से तौबा करके बुराई छोड़ देंगे और उनकी जिंदगी में फिर कल ना आया, कितने लोग सोचते थे कि अब अगले कल से सब गुनाहों से बरी हो जाएंगे और सिर्फ नेकी शुरू करेंगे और सुबह से पहले उनकी कहानी खत्म हो गई। लिहाजा ये हमारे लिए इबरत है। अब इमाम फरमाते हैं इन शगल तुम बेअयूबिन नास व तरक्तुम उयूबकुम, तुम्हारी दुआ इसलिए कबूल नहीं होती कि तुम लोगों के ऐबों को तलाश करते हो, लोगों के ऐबों को देखते हो लेकिन अपने ऐब को भूल जाते हो। बहरहाल ये सब तफसील है। अकल तुम नेअमतल्लाह फलम तशकुरु अलैहा, तुम अल्लाह की नेमतें खाते हो मगर उस पर शुक्र अदा नहीं करते। जो मिला है पहले उस पर शुक्र अदा करो। खुदा कहता है ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने हमारी नेमतों का शुक्र अदा किया तो हम उसको बढ़ा देंगे, और अगर कुफरानी नेमत की तो जो है वो भी नेमत चली जाएगी। याद रखिएगा, तो तुमने नेमतों से फायदा उठाया। इमाम फरमाए तुमने अल्लाह की नेमतें खाई मगर शुक्र अदा नहीं किया। ये जो नमाज हम पढ़ते हैं आप जानते हैं रवायत में है कि ये नमाज अल्लाह की नेमतों का शुक्राना है, जो हमें नेमतें जो उसने जिंदगी दी, खाने पीने के तमाम असबाब मुहैया किए, रहन सहन के तमाम जरूरियातों को उसने पूरे किए। तो जो हम उस पर अमल नहीं करते यानी उसकी नेमतों को शुक्र अदा नहीं करते, इसलिए कभी कभी हम तंगी में आ जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। दुफिन तुम अमवातकुम फला तअतदरू, ये आखिरी बात सुन लीजिए। दुफिन तुम अमवातकुम फला तअतदरू, तुम अपने मुर्दों को दफन तो करते हो मगर उससे इबरत हासिल नहीं करते, इसीलिए तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। इतनी बड़ी बात इमाम ने की कि आप सोच सकते हैं। अब मिसाल जब हम किसी को दफन करने जाते हैं कम से कम एक मुर्दे को कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए 4 कंधों की जरूरत होती है, 4 लोग कंधा देते हैं। बराबर हम सही बोल रहे हैं। एक मुर्दे को कब्रिस्तान में पहुंचाने के लिए, दफनाने के लिए कम से कम हमको 4 लोगों की तो जरूरत है। ठीक है जी 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 बस मैं आपसे से रेस्पॉन्स इसलिए दिया कि हम देखना चाह रहे थे आप लोग की तवज्जो है कि नहीं। 4 लोगों की जरूरत है, तो हम लोग क्या समझते हैं कि हम ये 4 लोग एक मुर्दे को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने जा रहे हैं। ये 4 लोग एक मुर्दे को उसकी आखिरी जगह दिखाने जा रहा है या उसका आखिरी मंजिल तक पहुंचाने जा रहे हैं। जबकि बरअक्स रवायतों में है कि जब तुम किसी को दफनाने जाओ तो अपने आप को ये कहते हुए जाओ, याद रखिएगा हकीकत क्या है, वो एक मुर्दा 4 जिंदों को उसकी मंजिल दिखाने लेके जा रहा है। हकीकत में एक मुर्दा 4 जिंदों को उसकी आखिरी मंजिल दिखाने लेके जा रहा है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिधर मुझे तुम लोग लेके जा रहे हो, मुझे तो वापस आने का मौका नहीं मिलेगा, मेरी तो कहानी खत्म होगी, लेकिन तुमको शायद वापस आने का मौका मिल जाएगा। लिहाजा जो गलतियां मैं करके जा रहा हूँ वो तुम मत करना, जो गलती मुझसे हुई उसको तुम बचना। गोया इस तरह से वो 4 जिंदों को कम अज कम, बाकी जितने जनाजे में शरीक होते वो सब के लिए वही है कि तुम
तुम जिसको दफनाने जा रहे हो आज तुम्हें मौका मिला कब्रिस्तान से बाहर जाने का, कल हो सकता है मौका न मिले, लिहाजा मौके को गनीमत समझो। इमाम फरमाते हैं तुम अमवात को दफन तो करते हो मगर उससे इबरत हासिल नहीं करते, इसलिए तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। उम्मीद है कि ये जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बेहतरीन बातें हमने आपके हवाले किया, पहले मुस्बत हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती उसके 2 मुस्बत वजह बताया, और फिर बाकी ये सारे जो मनफी वजह एक हमारे दुआ कबूल न होने के पीछे ये सारे रीजन है। उम्मीद है कि आप सबने इनसे फायदा उठाया होगा। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपसे आपके सवाल सुनना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई सवाल हो तो आप बता सकते हैं। जब आप साहब हमारी बात क्लियर लग गई?